Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter, Factors and Multiples. Factors. We know that a number may be made by multiplying two or more numbers. The numbers that are multiplied called factors of the final number product. So children, ये factors and multiples आपके लिए बिल्कुल new concept है. देखिए, आपको पता है कोई भी नंबर दो या दो से ज़्यादा नंबर को मल्टीप्लाई करके उसका आंसर आ सकता है. तो हम उन नंबर्स को यानी जो नंबर्स मल्टीप्लाइड होते हैं उन्हें फैक्टर्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल 3 into 7 is equals to 27. Here we get a new number that is 21 by multiplying 3 and 7. So 3 and 7 are the factors of 21. Similarly, 2 into 3 is equals to 6. 3 into 5 is equals to 15. 2 and 3 are the factors of 6. 3 and 5 are the factors of 15. देखिए, जैसे 21 है आपका, 3 multiply 7 is equals to 21. तो आपके 3 और 7 फैक्टर्स हैं 21 के. ओके इसी तरह से 2 into 6 is equals to 6 होता है, तो 2 and 3 आपके फैक्टर्स हैं 6 के. How do we test whether a number is a factor of another number or not? A number is a factor of another larger number if it divides a larger number exactly, that is no remainder is left. Is 8 a factor of 96? अच्छा, अब हम कैसे पता करेंगे कि ये नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर है या नहीं है? तो क्या करेंगे, जो लार्जर नंबर होगा आप उसे डिवाइड कर देंगे छोटे नंबर से. अगर वो कम्प्लीटली डिवाइड होता है यानी विदाउट रिमाइंडर, दैट मीन्स उसका फैक्टर है. फॉर एग्जाम्पल आपको 96 दिया गया है. 96 को जब आप डिवाइड करेंगे 8 से तो क्या आएगा, 8 ones are 8, 1 6, 8 twos are 16. So no remainder is left. That means 8 96 का फैक्टर है. फैक्टर्स हमेशा उस नंबर से छोटे होते हैं. एग्जाम्पल 2, फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ 72. सोल्यूशन 72 के फैक्टर्स के देखिए, डिफरेंट नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 72 आया है. देखिए 1 into 72 is equals to 72, 2 into 36 is equals to 72, 3 into 24 is equals to 72, 4 into 18 is equals to 72, 6 into 12 is equals to 72, 8 into 9 is equals to 72. So all the factors of 72 are 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36 and 72. तो 72 के सारे ये फैक्टर्स हैं. आप इस तरह से नहीं लिखेंगे, ये सारे ही आपके फैक्टर्स हैं. फिल इन द ब्लैंक्स हैं, आप इन्हें खुद करेंगे. Properties of factors. Property 1. If we multiply any number with 1, the product is the same as a multiplicand. For example, 2 into 1 is equals to 2, 44 into 1 is equals to 44, 132 into 1 is equals to 132. किसी भी नंबर का 1 से मल्टीप्लाई करिए, प्रोडक्ट सेम रहेगा, है ना. तो सो 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. इट इज ऑल्सो द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ ए नंबर. 1 हर नंबर का फैक्टर होता है एंड 1 स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है किसी भी नंबर का. प्रॉपर्टी 2. इफ वी मल्टीप्लाई 1 विथ any non-zero number, the product is the same as the multiplier. आप 1 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, सेम रहेगा. फॉर एग्जाम्पल 1 into 7 is equals to 7, 1 into 28 is equals to 28 and 1 into 122 is equals to 122. So every non-zero number is a factor of itself. It is also the greatest factor of a number. कोई भी नंबर जो है non-zero को छोड़ के वो उसका फैक्टर होता है एंड ग्रेटेस्ट फैक्टर किसी भी नंबर का वो नंबर खुद होता है. Property 3. We know that the factors of 30 are 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 and 30. Here we can see that the smallest factor of 30 is 1 and the greatest factor is 30. So the factor of a non-zero number is either less than or equal to the number. देखिए, जैसे आपने 30 के फैक्टर्स देखे, इसमें देखिए 1 आपका स्मॉलेस्ट फैक्टर है एंड 30 आपका जो है ग्रेटेस्ट फैक्टर है. तो फैक्टर क्या होता है, उस नंबर से कम या उसके बराबर. जैसे 30 है तो सारे फैक्टर्स 30 से कम होंगे, 30 से ज़्यादा नहीं होंगे. ओके, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इनको आप खुद करेंगे. Write the smallest and the greatest factor of 9,45,628. क्या आप इतने बड़े नंबर का स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट फैक्टर्स बता सकते हैं? ऑफ कोर्स बता सकते हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने आपको वही बताया था. अब इसे आप खुद से करेंगे. Multiples. When we multiply a number by a counting number, we obtain a product which is called multiple. For example, 2 into 7 is equals to 14. Here we get a product that is 14 by multiplying 2 and 7. So 14 is a multiple of 2 and 7. Similarly, 3 into 2 is equals to 6. 6 is a multiple of 3 and 2. 5 into 3 is equals to 15. 15 is a multiple of 5 and 3. 7 into 3 is equals to 21. 21 is a multiple of 7 and 3.
ओके, जब हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं काउंटिंग नंबर से तो हमें एक प्रोडक्ट मिलता है जिसे हम मल्टीपल कहते हैं। जैसे कि 2 को आपने 7 से मल्टीप्लाई किया तो 14, यानी कि 14 जो है वो आपका मल्टीपल है 2 एंड 7 का। इसी तरह से जब आप 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, 6 आपका मल्टीपल है 3 एंड 2 का। इसी तरह से आप एक पैटर्न फॉलो कीजिए, देखिए 5 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 5, 5 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 10, 5 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 15 एंड सो ऑन। We observe that there is no end of the multiples of a number. Multiples का कोई end नहीं है. How do we find whether a number is a multiple of another number or not? If a number is exactly divisible by the other number, then it is said to be the multiple of the other number, otherwise not. अब हम कैसे पता लगाएं कि ये नंबर दूसरे नंबर का मल्टीपल है? Same method, division method. आप डिवाइड करेंगे, अगर कंप्लीटली डिवाइड होता है तो मल्टीपल है, नहीं होता तो नहीं है। जैसे कि देखिए 8 ने डिवाइड किया 97 को, लेकिन लास्ट में बच गया रिमाइंडर, हैंस 97 इज नॉट कंप्लीटली डिवाइडेबल बाय 8 बिकॉज रिमाइंडर इज 1, सो 97 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 8। अब क्योंकि ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ है तो 97 8 का मल्टीपल नहीं है। ओके चिल्ड्रन, आपको एक्सरसाइज दी गई है, इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे। Critical thinking. There is a rope tied up on the roof of a building and clothes are drying on it. If the number of clothes are 48 and a clip is used on every 6th cloth, find the cloth numbers that are clipped and how many clips are used. बहुत easy है। छत पे एक रस्सी टंगी है जिस पे कपड़े सूख रहे हैं। अब वहाँ पे नंबर ऑफ क्लोथ्स हैं 48 और हर 6 क्लोथ पे क्लिप की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको ये बताना है कितने क्लोथ क्लिप्ड हैं एंड कितने क्लिप्स यूज़ हुए हैं। Properties of multiples. Property 1. Every number is a multiple of itself. For example, 2 into 1 is equals to 2, 4 into 1 is equals to 4. हर नंबर अपना मल्टीपल होता है। Property 2. Every number is a multiple of 1. For example, 1 into 3 is equals to 3, 1 into 5 is equals to 5. हर नंबर 1 का मल्टीपल होता है। Property 3. The smallest multiple of a number is the number itself. सबसे छोटा मल्टीपल नंबर खुद होता है। Property 4. A number has unlimited number of multiples, so there is no largest multiple of a number. किसी भी नंबर का largest multiple होता ही नहीं है क्योंकि unlimited multiples होते हैं। Property 5. Every multiple of a counting number is either greater than or equal to the number. अब multiple में क्या होता है, किसी भी नंबर का multiple या तो नंबर खुद होगा या फिर उससे ज़्यादा होगा बट उससे कम नहीं होगा। फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, इनको आप खुद से करेंगे। Common factors and common multiples. We have learned to find factors and multiples of the given numbers. We can also find common factors and common multiples of a pair or a group of numbers. अब हम common factors और common multiples कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। Finding common factors. There are many pairs or groups of numbers that we have common factors. Example, find the common factors of 16 and 18. अच्छा, अब इनके फैक्टर्स हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखिए फैक्टर्स जो 16 के फैक्टर्स हैं, 16 के फैक्टर्स आपको दिए गए हैं 1 2 4 8, 1 2 4 8 एंड 16 एंड फैक्टर्स ऑफ 18, फैक्टर्स ऑफ 18 के फैक्टर्स हैं 1 2 3 6 9 18। कॉमन का मतलब क्या है कि जो दोनों में आ रहे हैं, है ना। तो दोनों में देखिए सबसे पहले तो 1 कॉमन है क्योंकि ये दोनों में आ रहा है, इसके बाद 2 दोनों में आ रहा है ना, और इसके बाद कौन से नंबर है जो दोनों में आ रहे हैं, क्या 4 और 3 आ रहे हैं, क्या 8 और 6 आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब 16 और 18 के कॉमन फैक्टर्स हुए 1 एंड 2 जो दोनों ही नंबर्स में आते हैं। Finding common multiples. A number can be a multiple of 2 or more numbers, so a pair of group of numbers can have common multiples. For example, find the first 4 common multiples of 2 and 3. अच्छा देखिए, आपसे पहले 4 कॉमन मल्टीपल्स पूछें 2 and 3 के। 2 के मल्टीपल्स यानी आप 2 की टेबल लिख दीजिए, आपको बोला तो है नहीं कि कहाँ तक लिखना है, तो उस नंबर्स तक आप लिखेंगे। ओके, मल्टीपल्स ऑफ 3 इसी तरह से आप 3 की टेबल लिखेंगे। ओके, क्योंकि ये 3 के मल्टीपल्स हैं। अब आपको कॉमन मल्टीपल्स निकालें। फर्स्ट 4 यानी पहले 4, देखिए सबसे पहले 6 दोनों में आया, फर्स्ट नंबर 6, देन 12, 6 आपका एक मल्टीपल बना, देन 12 के बाद देखिए 18 एंड 18 एंड 24 एंड 24, ये
चार आपके जो नंबर्स हैं ये आपके पहले चार कॉमन मल्टीपल्स हैं 2 and 3 के. ओके, अब आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे. Classification of numbers. Let's learn to classify the numbers on the basis of number of factors and multiples they have. Even and odd numbers. Even number. A number which is a multiple of 2 is an odd number. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 are some even numbers. Even numbers always end in one of the digits as 0, 2, 4, 6 or 8. वो नंबर जो 2 का मल्टीपल है उसे हम इवन नंबर कहते हैं, और इवन नंबर के लास्ट में हमेशा आपके नंबर्स आते हैं 0, 2, 4, 6, 8. Okay? Odd number. A number which is not a multiple of 2 is an odd number. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 are some odd numbers. Odd numbers always end in one of the digits as 1, 3, 5, 7 or 9. Odd number हम उन्हें कहते हैं जो 2 के मल्टीपल नहीं है. And odd number हमेशा end digit से end होते हैं. Okay? Prime and composite numbers. Prime numbers, the numbers having only 2 factors, 1 and the number itself, are called prime numbers. Observe the following numbers. 2 into 1 is equals to 2, 3 into 1 is equals to 3, 5 into 1 is equals to 5, 7 into 1 is equals to 7. All these numbers have only 2 factors, 1 and the number itself. So these all are prime numbers. Prime numbers आपके वो होते हैं जिनके 2 factors होते हैं. एंड 2 फैक्टर्स उन्हीं के होते हैं जो सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं. जो नंबर्स उन्हें हम प्राइम नंबर्स कहते हैं. कंपोजिट नंबर्स, द नंबर्स हैविंग फैक्टर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स. ऑब्जर्व द फॉलोइंग नंबर्स. 4 is equals to 1 into 2 into 2, 6 is equals to 1 into 2 into 3, 12 is equals to 1 into 3 into 4, 28 is equals to 1 into 4 into 7. All these numbers have more than 2 factors, so these all are composite numbers. Composite numbers वो होते हैं जिनके factors 2 से ज़्यादा होते हैं. Okay? Remember that 1 is not a prime number and it doesn't have exactly 2 factors. 1 is not a composite number too as it doesn't have more than 2 factors. 1 ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, क्योंकि ना तो इसके 2 फैक्टर्स हैं और ना ही कंपोजिट नंबर के लिए क्या होना चाहिए, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होने चाहिए. सो इट इज़ ऑल्सो नॉट अ कंपोजिट नंबर. ओके, अब आपको इवन नंबर्स ऑड नंबर्स से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज दी गई हैं, इनकी प्रैक्टिस आप खुद करेंगे. क्रिटिकल थिंकिंग, थिंक एंड राइट. इवन प्लस इवन, ऑड प्लस ऑड, इवन प्लस ऑड. अगर आप इवन नंबर में इवन ऐड करेंगे तो व्हाट विल बी द आंसर. फॉर एग्जाम्पल 2 is even number, 4 is even number, दोनों को आप प्लस करेंगे तो आंसर विल बी 6. यानी इवन प्लस इवन इज इवन. ओके, बाकी 2 आप खुद करेंगे. Prime factorization. We can factorize a given number in several ways. For example, the number 60 can be factorized as, एक नंबर को फैक्टराइज करने के कई मेथड्स होते हैं. जैसे आप देखिए 60 को आप कैसे लिख सकते हैं. 1 into 60, 2 into 30, 3 into 20, 4 into 15, 5 into 12 and 6 into 30. We can see that in all these cases either one factor is prime and the other is composite or both the factors are composite. तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि या तो एक फैक्टर प्राइम है और दूसरा कंपोजिट, या फिर दोनों ही फैक्टर्स आपके कंपोजिट है. Let's see if it is possible to break 60 into factors that are all prime numbers. 60 is equals to 2 into 30 is equals to 2 into 15 is equals to 2 into 2 into 3 into 5. देखिए 60 को लिखा गया है 2 into 30. 2 into 30 60 होता है. अब देखिए हम 30 को कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं. 30 कैसे आता है 2 into 15 है ना. अब 15 को फैक्टराइज कीजिए. 15 कैसे आएगा 3 into 5. तो देखिए ये सारे ही जो आपके नंबर्स हैं, अब ये सारे के सारे क्या आ गए, प्राइम नंबर्स आ गए. The type of factorization where all the factors are prime numbers is called prime factorization. तो वो factorization जिसमें सारे ही numbers prime हो, prime factorization होता है. Finding prime factorization of a number. We can find prime factorization by using any one of the following 2 methods, factor tree method and division method. 2 method हैं जिसके थ्रू आप prime factors निकाल सकते हैं, वो है आपका factor tree and division method. First, prime factorization by factor tree method. In this method, we can find prime factorization of a number by using the following steps. Step 1. The given number is split into 2 factors, one prime and other composite. Step 2. The composite factor in step 1 is factorized as a product of prime and composite factors.
Step 2 is repeated till all the factors we get are prime. Step 3, write the number as product of all the prime numbers. For example, आपको 36 दिया गया है, 36 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें फैक्टर ट्री मेथड से. So let's do it. 36 आप इसे कैसे लिखेंगे? 2 into 18 is 36, है ना. अब आपका एक प्राइम फैक्टर आपको यहाँ पे मिल गया. अब 18 को करेंगे 2 into 9, 2 आपका प्राइम फैक्टर है, देन 9, 3 into 3. सो ये आपको आपके सारे प्राइम फैक्टर्स मिल गए. तो आप ध्यान से देखेंगे जो चारों नंबर्स हैं, वैसे तो 2 और 3 हैं जो रिपीट हो रहे हैं, ये आपकी प्राइम नंबर्स हैं. 2. Prime factorization by division method. In this method, we can find prime factorization of a number by using the following steps. Step 1. Find the smallest prime number which can divide the given number completely. Divide the number by this prime number to obtain quotient. Step 3. Check if the quotient is 1 or not. If it is 1, write the number as product of prime factors. If it is a number other than 1, take the quotient as the given number and repeat steps 1, 2 and 3. सबसे पहले आप क्या करेंगे डिवीजन मेथड में, आप वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ढूंढेंगे जो दूसरे नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करता है. देन आप क्या करेंगे, इस नंबर को डिवाइड करेंगे प्राइम नंबर से जिससे आपको क्वोशंट मिल सके. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका क्वोशंट 1 है या नहीं कैसे चेक करेंगे? अगर 1 है तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ प्रोडक्ट प्राइम नंबर्स प्राइम फैक्टर्स के, एंड अगर ये 1 से ज़्यादा है या अदर देन 1 है देन क्वोशंट आपका क्या होगा? गिवन नंबर. एंड इस प्रोसेस को, इस स्टेप को आप रिपीट करेंगे 1, 2 एंड 3. देखिए, देखते हैं कैसे करते हैं डिवीजन मेथड. आपको 84 दिया गया है. सबसे पहले आप जब भी प्राइम नंबर्स आप निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, रिमेंबर दैट आपको डिवाइड सिर्फ प्राइम नंबर्स से करना है. जैसे पहले आप 2 से करेंगे, अगर 2 से नहीं होता देन 3 से, देन 5, देन 7, देन 11 एंड सो ऑन. ओके, तो सबसे पहले हम 2 से, क्योंकि 4 है इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा. 2 से ये डिवाइड होगा 42 में. ओके, अगेन इवन नंबर है, फिर से ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 21, है ना. अब 21 जो है ऑड नंबर है, बिकॉज 1 आपका लास्ट में है तो ये ऑड नंबर है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा. अब हम अगले प्राइम नंबर पे जाएंगे, यानी 2 के बाद आपका नंबर आता है 3. सो 3 से हम डिवाइड करेंगे, 3 ये 7 से मल्टीप्लाई होगा, देन 7 1s are 7. सो द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 84 आर 2 into 2 into 3 into 7. ओके चिल्ड्रन, आपको एक्सरसाइज दी गई है, इसकी प्रैक्टिस आपने खुद से करनी है. आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा, एंड इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं इनकी प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.